بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ خیالات سے چونک گیا، پھر اس نے یہ سوچ کر گاڑی سٹارٹ کی کہ ہوٹل پرل کانٹیننٹل کے پارکنگ ایریا میں پہنچنے سے بھابھی جان پھر دماغ میں آئیں گی، لہٰذا وہاں جلد پہنچنا چاہیے۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کے احاطے میں آ گیا۔ شیتارا دروازہ کھول کر دائی ماں کے ساتھ باہر آئی، پھر وہاں سے چلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں پہنچ گئی۔ وہ دونوں ایک میز کے اطراف بیٹھ گئیں۔ ڈائننگ ہال کے اس حصے میں سیلف سروس کا انتظام تھا۔ شیتارا نے کہا، دائی ماں تم جاؤ، اپنے اور میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، میں خیال خوانی میں مصروف رہوں گی۔ کیا اس گدھے کے پاس جا رہی ہو؟ نہیں دائی ماں، میں نے خاصی تفریح کی ہے، اب ذرا سنجیدہ معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ تم نے آج صبح کہا تھا کہ تمہیں عقل آ گئی ہے، تم زیادہ سے زیادہ پانے کی دوڑ میں وقت سے پہلے بوڑھی ہونا یا مرنا نہیں چاہتی۔ ان فارمولوں پر مٹی ڈالو، حاضر دماغ رہو اور اس ماحول کو انجوائے کرو۔ میں فارمولوں کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہوں۔ وہ جو میرے پاس آنکھ نما ہیرا تھا وہ پارس نے لے لیا ہے۔ لے لیا ہے؟ کیسے لے لیا ہے؟ کیا اس سے سامنا ہوا تھا؟ ہاں، مگر جب سامنا رہا اس نے مجھے اور میں نے اسے نہیں پہچانا۔ بچھڑ جانے کے بعد ہمیں ایک دوسرے کی اصلیت معلوم ہوئی۔ جو کچھ قاہرہ میں ہوا تھا وہ دائی ماں کو سنانے لگی۔ دائی ماں میز پر قدرے جھکیں اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم نے جیوتش ودیا سے معلوم کیا تھا کہ 3، 13 یا 23 تاریخوں کو ایسا ہو سکتا ہے؟ تم نے تاریخیں یاد نہیں رکھیں، اسی کو مقدر کا کھیل کہتے ہیں۔ تقدیر کسی نہ کسی طرح اپنا کھیل کھیل کر ہی جاتی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں پارس کے دام میں آنے سے پہلے ہی بچ کر آ گئی ہوں۔ بیٹے بچنا اسے کہتے ہیں؟ تو اپنا سب کچھ لٹا آئی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں مسلمان بننے سے بچ گئی، ایک بار لٹ گئی، آئندہ دھوکہ نہیں کھاؤں گی۔ میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، تم اسے جھوٹ نہ بولنا، سچ بتا، کیا اس مرد نے متاثر کیا ہے؟ وہ کچھ نہ بول سکی، سر کو جھکا لیا۔ دائی ماں نے کہا، میں عورت ہوں، یہ جانتی ہوں، عورت پن کی لاج یہی ہے کہ جسے ایک بار لاج دے دی اسے مرتے دم تک اپنے جسم و جہاں کا مالک بنا لیا۔ جب جانتی ہو تو کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہ مسلمان ہے، اسے جسم و جہاں کا مالک بنائے گی تو تقدیر تجھے مسلمان بنا دے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ زہریلا مجھے یاد آنے لگا ہے، لیکن میں اس کی دوری برداشت کروں گی۔ برداشت نہ کر سکی تو آتما ہتیا کر لوں گی، مگر اپنا دھرم نشٹ نہیں کروں گی۔ میں مانتی ہوں تو بہت ضدی ہے، رفتہ رفتہ اس کی زہریلی طلب کو کچل دے گی، لیکن وہ 2 ہیرے خوش بختی کی علامت ہیں، انہیں کیسے حاصل کرے گی؟ ابھی تو یہ معلوم کروں گی کہ وہ صومالیہ سے واپس آ کر کہاں قیام کرے گا۔ جہاں جائے گا وہاں اپنی اور بھائی سرنا کی ڈمی کو اس کے پیچھے لگا دوں گی۔ بڑی خاموشی سے چالیں چلتی رہوں گی، جب تک کامیابی کا پورا یقین نہیں ہوگا اس پر حملہ نہیں کروں گی۔ بیٹی، پارس کے معاملے میں بہت محتاط رہو، وہ شیطان کا بچہ تمہاری کوششوں کا کوئی سرا تھام کر پھر تمہارے سامنے آ دھمکے گا۔ میں محتاط رہوں گی، تم جاؤ اور کھانا لے آؤ۔ دائی ماں چلی گئی۔ وہ سوچنے لگی، کس کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ فارمولوں تک کوئی پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں۔ مرینا نے اپنے ساتھ صفورہ اور عبداللہ کے دماغوں کو بھی لاک کر دیا ہے، شاید فرہاد ہی مرینا کو ٹریپ کر گیا ہے۔ پھر پارس کی ٹیم میں باربرا اور پاشا یوگا کے ماہر تھے، ان تمام میں سے کوئی اس کی معلومات کا ذریعہ نہیں بن سکتا تھا۔ شیتارا اس فلاور کے متعلق نہیں جانتی تھی کہ وہ الپا کی ٹیم سے نکل کر پارس اور باربرا کی پناہ میں آ گئی ہے۔ اس کے متعلق معلوم ہوتا تو وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اس کے دماغ میں پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر لیتی۔ سپر ماسٹر کے متعلق اس نے سوچا کہ وہ اپنی خفیہ فوج وہاں بھیج چکا ہوگا، اس فوج سے پارس کی ٹیم کا تصادم ہوا ہوگا، پتہ نہیں کون بازی جیت رہا ہوگا۔ ویسے پارس کے لیے وہ فارمولے لوہے کے چنے بن گئے ہوں گے، اس کی جان پر بنائی ہوگی۔ شاید الپا بھی تیسری نئی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئی ہو۔ کوئی بھی پارس کو روکنے اور اس پر سبقت لے جانے کے لیے اسے گولی مار سکتا ہے۔ پارس کون سا ان کا رشتہ دار ہے کہ وہ اسے بخش دیں؟ وہ تو کوئی موقع، کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ سبھی اسے دشمن سمجھتے ہیں، نشانے پر آتے ہی اسے ٹھائیں سے گولی مار دیں گے۔ وہ اندر سے کچھ پریشان ہوئی، اسے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ زہریلا مر جائے، اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کا اسیر ہو جائے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے اپاہج بنا کر رکھے اور ہمیشہ اس پر حکومت کرتی رہے، یعنی کسی طرح بھی اسے رکھے اور اپنا بنا کر رکھے۔
मोहब्बत से अपनाए या नफरत से अपनी मलकियत बनाए, मगर अपनी तहवील में रखे। वो नहीं समझ रही थी कि यही मोहब्बत की नफ्सियात है। मोहब्बत बाज़ औक़ात नफ़रतों की राहों से गुजरकर दिल में आती है। उस जंगल में मालूमात का ज़रिया सिर्फ पारस ही था। उसने उसके दिमाग पर दस्तक दी, फिर बोली, सांस ना रोकना। उसने पूछा, क्यों ना रोकूं? आप कौन है मोहतरमा? मेरा आपसे क्या रिश्ता है? बकवास मत करो, मैं तुम्हें ख़तरात से आगाह करने आई हूँ। वहाँ तुम्हारे मुकाबले पर कई नामालूम गोरिल्ले फाइटर आए होंगे। वो सब सुपरमास्टर की खुफिया आर्मी के जवान हैं। उस खुफिया आर्मी को मेरे मुकाबले पर आए हुए 6 घंटे हो चुके हैं और तुम अब खतरे से आगाह कर रही हो। बहुत देर की मेहरबान आते आते। बाय द वे, अचानक मेहरबान क्यों हो रही हो? वो ज़रा चुप हुआ, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, मुझे बातों में उलझाकर चोर ख्यालात पढ़ रही हो। मालूम करना चाहती हो कि फार्मूलों के सिलसिले में यहाँ क्या हो रहा है? मैं चोर ख्यालात दिल से मजबूर होकर पढ़ रही हूँ। मालूम करना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। क्या करोगी मालूम करके? तुम्हारी जवानी बहुत याद आती है। मैं तो सर से पाँव तक तुम्हारी हूँ। रातों को बिस्तर पर करवटें बदलती रहती हूँ। जब तक दिमाग को हिदायत नहीं देती नींद नहीं आती है। ये तुम सच कह रही हो, मैं जानता हूँ। तन्हाई में तुम मेरे जहर को पुकारती होगी। तुम उधर पुकारती हो तो इधर मुझे हिचकियाँ आती रहती हैं। मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपने दिमाग में ज़्यादा देर रहने नहीं दूंगा। मैं एक आवाज़ सुना रहा हूँ, उसके पास जाओ। उसने कहा, फ्लावर इधर आओ। मेरी घर वाली बेघर हो गई है, वो तुम्हारे दिमाग में घर बनाएगी। फ्लावर की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या और भी कोई टेलीपैथी जानने वाली आ रही है? हाँ, आ रही है। जाओ शितारा। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर होटल की मेज़ पर हाजिर हो गई। दाई माँ अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी। उसने फ्लावर के ख्यालात पढ़े। पता चला वो अल्पा की टीम से भटककर पारस की टीम में आई है। ये भी मालूम हुआ कि अल्पा उस फ्लावर के दिमाग में आकर देखती रहती है कि पारस क्या करता फिर रहा है। शितारा ने फ्लावर की ज़ुबान से कहा, पारस, ये क्या हमाकत है? तुमने फ्लावर को अल्पा की जासूसा बनाकर अपने साथ रखा हुआ है। वो बोला, तुम्हें भी जासूसा बनाकर इसके दिमाग में पहुंचा चुका हूँ। मौज करो, आराम से मेरे खिलाफ मालूमात हासिल करती रहो। वो सोच में पड़ गई। पारस को चाहिए था कि फार्मूले बाहिफाजत बाबा साहब के इदारे में पहुंचाने तक तमाम दुश्मनों को अपने से दूर रखता, लेकिन वो फ्लावर के ज़रिए दुश्मनों को अपने मुतल्लिक मालूमात फराहम कर रहा था। वो फ्लावर की ज़ुबान से बोली, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गए हो? कोई भी कहीं से भी छुपकर तुम्हें गोली मार देगा। उसने कहा, गोली होगी तो मारी जाएगी। मैंने मौजूदा मुहिम में यही एक तरीका अपनाया है। दुश्मनों के पास हथियार रहने देता हूँ, कारतूस गायब कर देता हूँ। तुम हो पक्के शैतान, लेकिन वो तीरों और तलवारों से हमले कर सकते हैं। सुपरमास्टर के गोरिल्लों ने मेरे हक में यही हमाकत की है कि अपने साथ जदीद हथियार लेकर आए, लेकिन तीर चलाने वाले एरो शूटर नहीं लाए। तलवार या चाकू से हमले करने के लिए उन्हें सामने आना होगा, लेकिन अब तक किसी ने सामने आकर हमला नहीं किया है। मैं फ्लावर के ज़रिए देख रही हूँ। छोटी झोंपड़ियों और बोने नीग्रो नज़र आ रहे हैं। क्या आप पैपेगमाइस कबीले में पहुँच गए हो? मुझसे कुछ ना पूछो, मैं एक काम से जा रहा हूँ। फ्लावर के ज़रिए जो मालूम कर सकती हो करती रहो। उसने फ्लावर के ज़रिए देखा। वो लोग एक पहाड़ी के दामन में थे। वहाँ एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के रहने वाले स्याफाम बोने थे, जिनके कद 3 या 4 फुट से ज़्यादा ना थे। उस पहाड़ी को 20 फुट की बुलंदी तक तराश कर एक देवता की मूर्ति बनाई गई थी। वो कबीला उस देवता की पूजा करता था। उसने फ्लावर के ज़रिए इतना ही देखा कि पारस उस देवता के दोनों पैरों के दरमियान से गुजरकर एक गार में जाते हुए नज़रों से ओझल हो गया था। फ्लावर की सोच ने बताया कि उसके करीब एक लकड़ी की चौकी पर नीलमा और बहराम बैठे हुए हैं। शितारा ने उसकी सोच में सवाल पैदा किया, बारबरा और पाशा कहाँ हैं? फ्लावर ने हैरानी से सोचा, ये बारबरा और पाशा कौन हैं? मैं इन नामों वाले अफराद को नहीं जानती हूँ। शितारा ने पूछा, वो नौजवान कौन है जिससे अभी मैं बातें कर रही थी और जो बुत के नीचे किसी गार में गया है? उसका नाम पारस है। वो कभी नज़र आता है, कभी गायब हो जाता है। वो अभी कहाँ गया है? पता नहीं कहाँ गया है। इस बस्ती में पहुँचने के बाद वो 4 घंटों तक गायब रहा था। नीलमा और बहराम बातें कर रहे थे कि यहाँ कुछ होने वाला है। तुम तजस्सुस पैदा कर रही हो। मुझे बताओ यहाँ क्या होने वाला है? फ्लावर के दिमाग से बारबरा की सोच की लहरें उभरीं। वो कह रही थी, शितारा,
ये बेचारी फ्लावर कुछ नहीं जानती है, लेकिन इसके ज़रिए आधे घंटे बाद तुम्हें, अल्पा को और सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले विकी सोल को इन फॉर्मूलों के मुतल्लिक कुछ ना कुछ बताया जाएगा। अपनी घड़ी देखो, ठीक आधे घंटे बाद। शितारा ने घड़ी देखी। बारबरा ने कहा, तुम सबको हैरानी थी कि पारस ने फ्लावर को तुम लोगों के लिए मालूमात का जरिया बनाकर क्यों रखा है। इसलिए, हाँ इसलिए कि तुम्हें, सुपर मास्टर को और यहूदियों को बैक वक्त इन फॉर्मूलों का दीदार कराया जाएगा। अब जाओ, फ्लावर को परेशान ना करो। वो दिमागी तौर पर होटल की मेज़ पर हाजिर हो गई। अभी वो ख्याल ख्वानी जारी रखकर मालूम करना चाहती थी कि वो लोग वहाँ क्या करते फिर रहे हैं और सुपर मास्टर के गुरिल्ले फाइटर कहाँ गायब हो गए हैं। लेकिन ख्याल ख्वानी का सिलसिला अचानक ही टूट गया। ड्राइवर आदिल चंगेज़ी ने उसके करीब एक कुर्सी पर बैठकर कहा, प्यारी शहनाज, भाभी जान ने मेरे दिमाग में आने का वादा किया था, वो अभी तक नहीं आई है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? वो नागवारी से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ड्राइवर की वर्दी में मेरे पास बैठ गए हो। लोग अजीब अजीब नज़रों से देख रहे हैं, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँगा, तुमसे इश्क करता हूँ, मजाक नहीं करता हूँ। भाभी जान के आते ही शादी की तारीख पक्की करूँगा। देखो आदिल, मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ, चले जाओ वरना। अरे वाह, खाने की प्लेट सामने जूं की तू है, ना खा रही हो ना कोई काम कर रही हो, चुपचाप बैठी हुई हो और कह रही हो कि मसरूफ़ हो। अरे इस तरह बैठे बैठे तो सिर्फ ख्याल ख्वानी करने वाले मसरूफ़ रहते हैं। क्या तुम टेलीपैथी जानती हो? वो हिचकिचाई, फिर बोली, मैं टेलीपैथी नहीं जानती हूँ। यहाँ कोई सुनेगा तो खामखा मेरे पीछे पड़ जाएगा। तुम यहाँ से फ़ौरन जाओ वरना। वो उसके दिमाग में जगह नहीं बना सकती थी, लेकिन भाभी जान बनकर उसके अंदर जल्जला पैदा करके वहाँ से जाने पर मजबूर कर सकती थी। लेकिन ऐसे में आदिल तमाशा बन जाता, वो भी इस तमाशे का किरदार बन जाती। उसने तहम्मुल से काम लेते हुए उसके अंदर पहुंचकर कहा, प्यारे देवर, मुझे अफसोस है कि वादे के मुताबिक ना आ सकी। यहाँ दुश्मनों ने तुम्हारे भाईजान को चारों तरफ से घेर लिया है। मैं उनकी जान बचाने की फिक्र में हूँ। दुश्मनों को जहन्नम में पहुँचाते ही तुम्हारे पास आऊँगी। तुम फ़ौरन पार्किंग एरिया में जाओ, मैं जल्दी आने वाली हूँ। वो फ़ौरन ही उठकर वहाँ से बाहर जाने लगा। शितारा ने इत्मीनान की सांस ली। दाई माँ ने कहा, बेटी तुम यूं भी तमाशा बनी हुई हो, सामने खाने की प्लेट रखकर सर झुकाए बड़ी देर से बैठी हो। लोग तुम्हें देखकर क्या सोच रहे होंगे? क्या फिर इन फॉर्मूलों की दलदल में धंस रही हो? दाई माँ, अभी आधे घंटे में बल्कि 25 मिनट के बाद पारस फार्मूलों के मुतल्लिक कुछ कहने वाला है। मेरी वहाँ मौजूदगी लाजमी है। मालूम तो हो कि उन फार्मूलों का क्या बन रहा है। जाहिर है वो पारस के कब्ज़े में आ गए हैं और तुम उस पर कब्ज़ा नहीं जमा सकोगी। नहीं दाई माँ, उन फार्मूलों को जंगल से बाबा साहब के इदारे तक पहुँचाने के दौरान उन्हें छीन ले जाने की बड़ी गुंजाइश है। जंगल में सुपर मास्टर और यहूदियों के महदूद वसाइल थे, मगर ये बड़े मुमालिक फार्मूलों के पेरिस पहुंचने तक क़यामत बर्पा कर देंगे। ऐसे हंगामों के दौरान मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वो 2 हीरा आंखें पारस से छीनकर अपने कब्ज़े में कर लूँ। मुझे फार्मूलों से ज़्यादा उन हीरों की ज़रूरत है, वो मेरी खुशबख्ती की अलामत हैं। ऐसा है तो घर चलो, यहाँ होटल में मसरूफ़ नहीं रह सकोगी। मैं खाना पैक करा कर ले आती हूँ। वो चली गई, लेकिन खाना पैक करा कर लाने तक 20 मिनट गुजर गए। अब 5 मिनट में पारस के पास जाना था। उसी वक्त फिर आदिल आ गया। उसे देखते ही वो परेशान होकर बोली, फिर क्यों आए हो? फ़ौरन वापस जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। वो पास वाली कुर्सी पर बैठकर बोला, मैं बहुत परेशान हूँ। बड़ी देर से सोच रहा हूँ कि भाईजान को किन दुश्मनों ने घेरा होगा और भाभी जान उनसे किस तरह निमट रही होंगी। तुम्हारे सोचने से उनकी मुसीबतें दूर तो नहीं होंगी। तुम जाओ। मुसीबतें कैसे दूर नहीं होंगी? मैं बड़ी अक्ल से सोचता हूँ। अब भाभी जान आएंगी तो मैं उनसे उनका पता और फ़ोन नंबर मालूम करूँगा। फिर उन्हें बताऊँगा कि किस वक्त कौन दुश्मन उनके मुकाबले पर है और उनसे किस तरह उन्हें निमटना चाहिए। ठीक है, पता और फ़ोन नंबर मालूम कर लेना। अभी जाओ। कहाँ जाऊँ? उन्हें कैसे बताऊँ कि इस वक्त शितारा और सरना भाईजान से दुश्मनी कर रहे हैं? शितारा ने चौंक कर देखा, फिर पूछा, तुम मेरे मुतल्लिक? वो कहते कहते रुक गई, फिर संभल कर बोली, तुम शितारा के मुतल्लिक क्या जानते हो? अरे उसके बारे में क्या जानना है, वो तो पक्की हर्राफा है, चलित्तर है। वो हलक के बल चीख पड़ी, यू शट अप जलील कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे गालियां देने की जुर्रत कैसे की? मैं तुम जैसों पर थूक दूं तो वो मर जाते हैं। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। दाई माँ आकर उसे लिपट गई। वहां बैठे हुए बेशुमार लोग उन्हें सवालिया निगाहों से देख रहे थे। होटल का मुंतजिम 2 बैरों के साथ दौड़ा चला आया था।
दाई माँ उसे थपक थपक कर कह रही थी, बेटी शांत हो जा, चुप कर, तमाशा ना बन, चल यहाँ से बाहर चल। वो उसे समझाती हुई बाहर ले जाने लगी। आदिल हैरानी से दीदे फैलाए उसे जाते हुए देख रहा था। मुंतजिम ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? मैं बीबी जी का यानी अपने होने वाली का ड्राइवर हूँ। आप होने वाली का मतलब समझते हैं ना? बीवियाँ शादी के बाद गालियाँ देती हैं, ये शादी से पहले देकर जा रही है। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी निमट लूँगा। वो जाने लगा। दाई माँ सितारा को लेकर बाहर आ गई थी और समझाती जा रही थी, ये ज़्यादा मेहनत करने और दिन रात मसरूफ़ रहने का नतीजा है कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो रहा है। तुम गुस्से पर काबू पाना भूल गई हो। तुम्हें ये भी होश नहीं रहा कि पब्लिक प्लेस में हो, यहाँ जासूस भी हो सकते हैं। तुम्हारी ज़रा सी गलती पर शुबा हो सकता है और मज़ीद मालूमात के लिए तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। तुम मुझे ही कहती जा रही हो, उस जलील कमीने ने मुझे गालियाँ। वो बात काट कर बोली, तुम्हें नहीं, सितारा को गालियाँ दी, और तुम ये भूल रही हो कि अभी सितारा नहीं हो। सितारा को मिलने वाली गालियों पर गुस्सा करते हुए तुमने वहां जाहिर कर दिया कि तुम बानो शहनाज नहीं हो। इस बात को उस अहमक ड्राइवर ने नहीं समझा होगा, लेकिन दूसरा कोई इस गलती को पकड़ सकता है। वो गाड़ी के पास आकर उसे टेक लगा कर बोली, ओ गॉड, वाकई गुस्सा हराम होता है। भगवान करे मेरी इस गलती को किसी ने ना समझा हो। दाई माँ, एक मेहरबानी करो, देखो वो ड्राइवर आ रहा है, मैं उससे बाद में निमट लूँगी। अभी तुम उसे बहला फुसला कर दूर ले जाओ, जब तक मैं ना कहूँ उसे यहाँ ना आने दो। 5 मिनट गुजर चुके हैं, मेरा उस जंगल में पहुँचना ज़रूरी है। दाई माँ आदिल की तरफ तेज़ी से गई। सितारा कार का दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई, फिर फौरन ही ख्यालख्वानी की परवाज़ करती हुई फ्लावर के दिमाग में पहुँच गई। उसके ज़रिए मालूम हुआ कि पारस एक बड़ी चट्टान के पास खड़ा हुआ है। वो कह रहा था, जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं उन्हें मैंने कहा था कि वो सब फ्लावर के दिमाग में आ जाएं। मैं फार्मूलों के सिलसिले में अहम बातें करना चाहता हूँ। अभी अल्पा ने कहा है कि वो फ्लावर के अंदर मौजूद है और कोई हो तो आवाज़ दे। फ्लावर ने बुलंद आवाज़ से कहा, मैं सुपर मास्टर का टेलीपैथी जानने वाला विकी सोल बोल रहा हूँ, मैं भी हाजिर हूँ। सितारा ने भी फ्लावर की ज़ुबान से कहा, मैं भी मौजूद हूँ। पारस ने कहा, मेरे पास 1 अनार है और 3 बीमार आ चुके हैं, और कोई है? मरीना ने भी फ्लावर के ज़रिए कहा, मैं भी इन फार्मूलों की तलबगार हूँ। वाह वाह, तमाम टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन आज एक फ्लावर के दिमाग में आकर जमा हो गए हैं। सितारा, मरीना, अल्पा और विकी सोल, ये 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं। 5वीं बारबरा है, क्योंकि हमें भी इन फार्मूलों की ज़रूरत है। सितारा ने पूछा, वो फार्मूले कहाँ हैं? यहाँ मेरे कदमों में हैं। पारस ने झुककर अपने कदमों के पास पड़े हुए एक प्लास्टिक के थैले को उठाया, फिर उसे दिखाते हुए कहा, वो फार्मूले इस थैले में बड़ी हिफाजत से रखे हुए हैं। जब तक ये इसमें बंद हैं और तमाम खुदगर्ज हाथों से दूर हैं, तब तक किसी कदर अमन और सुकून है। अगर ये किसी एक हाथ में रहेंगे तो बाकी तमाम टेलीपैथी जानने वाले अपने मुल्क के लिए या अपने ज़ाती मुफाद के लिए इसे जबरन हासिल करना चाहेंगे। फिर नतीजा जाहिर है, इन कागजात के लिए खून की नदियां बहाई जाएंगी। अल्पा ने कहा, ये बातें हम भी जानते हैं, वक्त ज़ाया ना करो, काम की बात करो। पारस ने कहा, तुम्हारा वक्त ज़ाया हो रहा है, लिहाजा यहाँ से चली जाओ। मरीना ने कहा, यह पागल की बच्ची है, तुम अपनी गुफ्तगू जारी रखो। अल्पा ने कहा, तू है पागल की बच्ची, अगर तू मेरे सामने होती तो मुंह तोड़ देती। मरीना ने कहा, तेरी एक नहीं 2 टीमें इस जंगल में आई, मैंने दोनों को जहन्नम में पहुंचा दिया। पहले जाकर अपनी शिकस्त का मातम कर, फिर मुंह तोड़ने की आरजू करी। पारस ने कहा, 1 अंडे में 2 चूजे और एक घर में 2 औरतें मुंह बंद करके नहीं रह सकती। मैंने गलती की जो तुम सबको एक जगह जमा कर दिया। सितारा बोली, इन्हें आपस में लड़ने दो। तुम ये बताओ, फार्मूले तो तुम्हारे हाथ लग गए हैं, अब तुम कौन सा तमाशा कर रहे हो? क्या ये कागजात हमारे हवाले कर सकोगे? तुम में से शायद किसी को यकीन नहीं आएगा, मैं ये कागजात तुम सब के हवाले करना चाहता हूँ। फिर तो ये असल फार्मूले नहीं हैं, तुम ये नकली कागजात हमें देकर यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हो। मैं कागज़ का एक टुकड़ा दिए बगैर भी बखैरियत चला जाऊँगा। इन कागजात को नकली समझने से पहले अपने अपने ममालिक के सरबराहों से जाकर मशवरे करो और उनसे पूछो कि पारस के हाथ में कागजात हैं और दूसरे हाथ में लाइटर है, क्या वो कागजात को जला दे? विकी सोल ने कहा, कागजात असली हो या नकली, इन्हें जलाया ना जाए, हमें उनके असल होने का यकीन दिलाया जाए। अल्पा ने कहा, मैं यकीन करने के लिए वो कागजात पढ़ना चाहती हूँ।
शितारा बोली, मैं भी इन्हें पढ़ने के बाद यकीन करूंगी। पारस ने कहा, अगर इस तरह एक ख्याल ख्वानी करने वाली पड़ेगी तो जानती हो नतीजा क्या होगा। मिसाल के तौर पर अल्पा जहां है वहां अपने पास कई इल्मे तिब जानने वालों को कागज़ कलम के साथ बिठाएगी, इधर पढ़ती जाएगी उधर बोलती जाएगी, और वो इल्मे तिब के जानने वाले लिखते लिखते पूरा फार्मूला नोट कर चुके होंगे। फिर अल्पा बोलेगी कि ये फार्मूले असली नहीं थे, उन्हें जला दिया जाए। विकी सोल ने कहा, तुम वो फार्मूले फ्लावर के सामने रख दो, हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले बैक वक्त उन्हें पढ़ लेंगे। पारस ने कहा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। इस प्लास्टिक के थैले में 12 कागजात हैं। मैं 6 टेलीपैथी जानने वालों में 2-2 के हिसाब से बांटना चाहता हूँ। हर एक को 2 कागजात मिलेंगे। हम यहाँ 5 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं, तुम 6 क्यों कह रहे हो? मास्क मैन का ख्याल ख्वानी करने वाला एवन रास का नंबर 6 है, लेकिन वो यहाँ ना मौजूद है ना इसका तलबगार, इसे शुमार में ना लाओ। उसे इन फार्मूलों का इल्म नहीं है, लेकिन जब इल्म होगा तो वो भी इन्हें हासिल करने की खातिर लड़ने मरने पर आमादा होगा। मैं लड़ाई नहीं चाहता। अगर हर एक के पास 2-2 कागजात रहेंगे तो वो एक दूसरे से समझौता करेंगे। अपने कागजात की फोटोस्टेट उसे देगा, उसके कागजात का डुप्लीकेट खुद लेगा। इस तरह जब तक 6 टेलीपैथी जानने वाले या उनके सरबराह एक दूसरे से मोहब्बत और दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक किसी के पास भी मुकम्मल फार्मूला नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शितारा बोली, तुम हमें अधूरे फार्मूले दोगे, लेकिन तुमने अपने पास मुकम्मल फार्मूले रखे हैं। क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल इंसाफ है। जो दौड़ में अव्वल आता है उसे पहला इनाम मिलता है। मुझे मुकम्मल फार्मूलों के तौर पर पहला इनाम मिल चुका है। पीछे आने वालों को भी कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। अगर इसे इंसाफ और हमारी ईमानदारी नहीं समझती हो तो अपने घर जाओ। अल्पा ने पूछा, क्या तुमने इन फार्मूलों को अपने लिए दूसरे कागजात पर नकल किया है? पारस ने कहा, यहाँ से कागजात पर नकल करके ले जाने की हमाकत क्यों की जाए? रास्ते में वो कागजात दुश्मन छीन कर ले जा सकते हैं, इसलिए हमने नकल नहीं की है। 2 घंटे पहले सोनिया सानी बारबरा के दिमाग में आई थी। बारबरा वो तमाम फार्मूले शुरू से आखिर तक पढ़ती रही। पेरिस में बैठी हुई सानी उन्हें लिखती रही। यूं मुकम्मल फार्मूला वहां पहुंच चुका है। यह कहकर उसने प्लास्टिक के थैले से 2 कागजात निकाले, थैले को नीचे रखा, फिर 2 कागजात दिखाते हुए बोला, इन्हें अच्छी तरह देख लो, ये सिर्फ 2 हैं। मुनसिफाना तकसीम के मुताबिक ये 2 कागजात बारबरा के यानी हमारे हैं। चूंकि ये हम किसी को नहीं दिखाएंगे इसलिए मैं इन्हें जला रहा हूँ। वो लाइटर के जरिए उन्हें जलाने लगा। वो कागजात जब तक जलते रहे तब तक खामोशी रही। फिर अल्पा ने फ्लावर की ज़ुबान से कहा, मैं अपने अकाबरीन से मशवरा करना चाहती हूँ, मुझे 1-8 घंटे की मोहलत दो। विकी सोल ने कहा, मैं अपने हिस्से के 2 कागजात ज़रूर लेना चाहूँगा। इस सिलसिले में मुझे भी 1 घंटे का वक्त दो। पारस ने कहा, तुम सबको वक्त देता हूँ, 1 घंटे बाद आकर बताओ अपने अपने हिस्से के कागजात कैसे वसूल करोगे। जाने से पहले ये भी सुन लो कि मैंने यहाँ आकर 7 घंटे ज़ाया नहीं किए हैं। इस बस्ती के अतराफ़ ऐसे इंतज़ामात किए हैं कि हम पर हमला करने के लिए फ़ौज भी आएगी तो फना हो जाएगी। यकीन ना हो तो सुपर मास्टर से पूछो कि उसकी खुफिया आर्मी के जिस सिपाही ने भी इधर आने की हमाकत की वो दरख्तों और झाड़ियों में छुपे हुए बमों से हलाक हो गया। यहाँ आने और यहाँ से जाने वालों को ज़िंदगी का नहीं सिर्फ मौत का पासपोर्ट मिलेगा। अब जाओ। शितारा दिमागी तौर पर कार की पिछली सीट पर हाजिर हो गई। पारस की हिकमत अमली और उसका अंदाज उसके हवास पर छा रहा था। वो लोहे के सतून की तरह अपनी जगह गड़ जाता था तो वहाँ से कोई उसे उखाड़ नहीं सकता था। ऐसे वक्त वो परेशान होकर सोचने लगी थी, मेरे सितारे ऐसे मर्द से क्यों टकरा रहे हैं? मैं हुकूमत करने के लिए पैदा हुई हूँ। क्या ही अच्छा होता कि कोई ताबेदारी करने वाला मर्द मेरे मुकद्दर में लिखा होता। उस जहरीले की हरकतें देख देख कर हौल उठता है कि मेरा क्या बनेगा। अल्पा ने ब्रेन एडम के पास आकर उसे फार्मूलों के मुतल्लिक बताया। फिर कहा, बड़े भाई ये पारस बहुत मक्कार है, इसने फार्मूलों के सिलसिले में उलझन पैदा कर रखी है। वो असली होंगे या नकली, क्या आप कह सकते हैं? ब्रेन एडम ने कहा, मैं मानता हूँ वो शैतानी खोपड़ी रखता है। मेरी अकल कहती है कि वो कागजात नकली हों तब भी अपना हिस्सा हासिल करना चाहिए। हम इल्म तिब के माहिरीन से तस्दीक कराएंगे कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोला, कमबख्त ज़बरदस्त मक्कार है, सोनिया का सही जानशी है। उसने अपने हिस्से के 2 कागजात जलाकर उन फार्मूलों को अधूरा बना दिया है। ये बात समझा दी है कि तुम मरीना, विकी सोल, शितारा और एवन रास का आपस में कितनी ही गठजोड़ कर लो, वो फार्मूले उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होंगे जब तक फरहाद से दोस्ती और उसकी खुशामद नहीं की जाएगी। एक तरह से वो फार्मूले हमारे लिए बेकार हैं क्योंकि मुसलमानों से कभी दोस्ती नहीं होगी। सिस्टर,
इस पहलू से बेकार हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि फॉर्मूले के 2 कागजात हमारे पास रहेंगे तो शितारा, मरीना, मास्कमैन और सुपरमास्टर उन 2 कागजात के मोहताज रहेंगे। वो ज़रा चुप हुआ, सोचता रहा, फिर बोला, माय गॉड, अब उस शैतान की चाल समझ में आ रही है। वो हम सबको फार्मूले मुकम्मल करने के मामले में उलझाए रखेगा। उधर मुकम्मल फार्मूलों से बाबा साहब के इदारे में गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज जिस्मानी और दिमागी कुव्वत के लोग पैदा किए जाएंगे। बड़े भाई, ऐसे लोगों को पैदा होने से अब कोई नहीं रोक सकेगा। हमें अधूरे फार्मूले की खैरात नहीं लेनी चाहिए। नहीं सिस्टर, अपने हिस्से के 2 कागजात ज़रूर हासिल करो। अगर हम मज़ीद 2-4 हिस्से दूसरों से छीन लें तो उन मुख्तलिफ़ कागज़ों को जमा करने से हो सकता है कि उनमें से कुव्वत समात या कुव्वत बसारत का या किसी एक और गैर मामूली कुव्वत का फार्मूला हमें मिल जाए। जाओ और वो हिस्से हासिल करो। उसके लिए अपना एक ऐसा आदमी उस जंगल में भेजना होगा जो योगा का माहिर हो, उसके दिमाग में कोई दूसरा ना जा सके। मैं उसके अंदर रहकर अपने हिस्से के 2 कागजात पढ़ूंगी और उन्हें यहाँ नोट कर लूँगी। फिर हमारा वो आदमी उन 2 कागजात को वहीं जला डालेगा। ठीक है, मैं ऐसे एक शख्स को रवाना करने के फौरी इंतजामात करता हूँ। पारे से कहो जिस पहाड़ी पर वो बुत तराशा गया है उसकी चोटी पर हमारा हेलीकॉप्टर उतरेगा। ये भी पूछो कि हमारे कितने आदमी वहाँ आ सकते हैं। अल्पा ने फ्लावर के पास आकर पूछा, पारस कहाँ है? मैं नहीं जानती, वो कभी नज़र आता है, कभी गायब हो जाता है। मैं अपने हिस्से का फार्मूला लेने आई हूँ, उसे बुलाओ। उसने 1 घंटे बाद तुम सबको आने के लिए कहा है। तुम आधा घंटा पहले आ गई हो। जाओ और वक्त पर आओ। दूसरी तरफ विकी सोल ने सुपरमास्टर को फार्मूलों की तफसील बताई। सुपरमास्टर ने कहा, पारस वो फार्मूले तकसीम करके हमें आपस में लड़ाना चाहता है। कोई बात नहीं, अपने हिस्से के 2 कागजात ज़रूर हासिल करो ताकि कोई दूसरा हमारे हिस्से का फ़ायदा ना उठाए। मरीना हमारी मामूला और ताबेदार बनी हुई थी। इस बस्ती में अब्दुल्ला और सफूरा के साथ एक झोंपड़ी में थी। सफूरा कभी पारस की आवाज़ सुनती तो झोंपड़ी से बाहर आ जाती थी। उसे आते जाते देखती रहती थी। उसका जी चाहता था कि उसके करीब रहे। जब वो बस्ती के अतराफ दरख्तों और झाड़ियों में रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाले बम रख रहा था, तब वो उसके साथ जंगल में घूम घूम कर काम करने लगी थी। उसने एक जगह बम रखते हुए कहा, तुम जिस अंदाज से काम करते हो इस तरह एक दिन धोखे में मारे जाओगे। तुमने किस बिना पर यह सोच लिया है कि धोखे में मारा जाऊंगा? वो बोली, वहाँ घाट में जो बस्ती थी, तुम पिछली रात उधर एक झोंपड़ी में जाकर सो गए थे। ये मालूम करने की जहमत नहीं की कि आसपास की झोंपड़ी में कोई दुश्मन हो सकता है। पिछली रात यही हुआ था। पारस जिस झोंपड़ी के अंदर जाकर एक मचान पर सोया था, उसके पीछे दूसरी झोंपड़ी में ब्लैक एडम सो रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बेखबर एक दूसरे के पड़ोसी बनकर नींद पूरी कर रहे थे। वैसे पारस के लिए ज़्यादा खतरा नहीं था। उसने तमाम कारतूस गायब करके ब्लैक एडम को निहत्ता कर दिया था। फिर यह कि उसने सिर्फ 2 घंटे की नींद के लिए दिमाग को हिदायत दी थीं। ब्लैक एडम से पहले ही बेदार हो गया था। मचान से उतरकर झोंपड़ी से बाहर आया तो पीछे वाली झोंपड़ी के करीब से गुजरते हुए ठिठक गया। वहां करीब ही खाने के खाली डिब्बे पड़े हुए थे। उन डब्बों पर तिल अबीब की फूड इंडस्ट्री का नाम दर्ज था। वो खाली डब्बे बता रहे थे कि वहाँ कोई यहूदी मुसाफिर क़ियाम पजीर है। उसने झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा। वो ब्लैक एडम को नाम से नहीं, चेहरे से पहचानता था। मचान के नीचे एक बैग लटक रहा था। उसने बैग को खोलकर देखा। कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। उसने एक नोटबुक में एक कागज़ को फाड़ कर उस पर लिखा, पिछली रात मैंने तमाम कारतूस खाली किए और तुम्हारी गाड़ी लंगड़ी कर दी। अभी तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हें लंगड़ा बना सकता हूँ, मगर खुश नसीब हो कि सो रहे हो। मैं सोने वालों पर हमला नहीं करता। उसने तहरीर के नीचे पी लिखकर कलम और नोटबुक को बैग के अंदर रखा। फिर उस पर्ची को बैग की जिप में फंसाकर वहाँ से चला आया। बाद में जंगल के रास्तों से गुजरते हुए उसने ये बात सफूरा को बताई थी। उसने पूछा, अगर वो दुश्मन तुमसे पहले बेदार हो जाता तो क्या होता? अगर पिछली रात मैं तुम्हें न्योले से ना बचाता तो क्या होता? मैं मर जाती और क्या होता? तुम्हारे सवाल का भी जवाब यही है। अगर हम ये सोचें कि सड़क पार करने से कोई गाड़ी कुचल कर चली जाएगी तो हम तमाम उम्र सड़क के किनारे ही खड़े रह जाएंगे। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? वो तो पिछली रात अदा कर चुकी हो। न्योले और गोगांबा से बचाने का नहीं, मरीना की ताबेदारी से निजात दिलाने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो तो अदा कर ही रही हो। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार है। तुम मेरी ज़ात में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही हो। दुश्मन टल जाएंगे, फुर्सत हो जाएगी तो जंगल में मंगल मनाकर शुक्रिया अदा करना और मुझे भी शुक्रिया का मौका देना। शितारा कार की पिछली सीट पर बैठी सोच रही थी कि उसके हिस्से में फार्मूले के 2 कागजात
آ رہے ہیں وہ انہیں ضرور حاصل کرے گی۔ وہ فوراً ہی اپنے کسی اعلی کار کو وہ کاغذات لینے نہیں بھیج سکتی تھی۔ اس اعلی کار کے لیے ہیلی کاپٹر وغیرہ کے انتظامات کرنے پڑتے، اس میں بڑا وقت ضائع ہوتا۔ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ کام کرے گی۔ اس نے پارس کو مخاطب کیا۔ وہ بولا، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ مقررہ وقت پر فلاور کے پاس آؤ۔ مقررہ وقت سے پہلے اس لیے آئی ہوں کہ ہمارا اور تمہارا کوئی اور بھی رشتہ ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔